या गुड इवनिंग ऑल। कैसे हैं आप लोग? हमें ऑडिबल? गुड प्लीज इवनिंग कंफर्म। गुड इवनिंग सर। जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। तो कल मैंने कुछ होमवर्क दिया था, करा क्या आप लोगों ने? हाँ। कल होमवर्क दिया था ना मैंने कोई? सर 5 गणित लॉज का दिए तो थे। मैंने अटेंड नहीं किया था सर, काफी मांगता उसके। अच्छा, कोई बात नहीं। चलिए, तो हाँ, कौन बताएगा फिर? फाइव लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस हमने कहा था किसको पढ़ करके आना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यस सर। हाँ, तो भाई देखिए, इसको पढ़िए आप लोग, ठीक है। ठीक तो आज का होमवर्क है आप लोगों के लिए दूसरा, कि है सर। इसका आंसर तैयार करना है कि आपको क्यों चुना जाना चाहिए। वाई शुड आई हायर यू, ठीक है। हाँ, क्यों आपको ही क्यों क्यों चुना जाए, आपको ऐसी क्या क्वालिटीज आपके अंदर हैं, है ना, जो आपको चुना जाए। या आपके अंदर क्या काबिलियत है, क्या स्किल्स है, क्या आपका एक्सपीरियंस कितना है, कैसा है, ठीक है। यस। हाँ, क्योंकि और भी कैंडिडेट्स हैं एमपीपीएससी में जो इंटरव्यू दे रहे हैं, तो सिर्फ आपको ही क्यों चुना जाए, है ना। तो इसका एक अच्छा सा आंसर आप लोगों ने प्रिपेयर करना है, नेचुरली, ठीक है। उसको प्रिपेयर करिए और मुझे बताइए, ठीक है। और फिर उसके अंदर जो इम्प्रूवमेंट्स हैं वो फिर मैं सजेस्ट करूंगा, ठीक है, कि इसको आप और कैसे बेहतर बना सकते हैं। लेकिन पहले आपने खुद इसको तैयार करना है, इसका आंसर, ठीक है। जी सर। ओके, वेरी गुड। ठीक है, तो मॉक देंगे फिर। आप कल नहीं थे, विवेक जी, है ना, विवेक कुंबर। Yes, sir। विवेक जी, आपकी आवाज़ प्रॉपर नहीं आ पा रही है। अभी सर, अभी आ रहे हैं। हाँ, अभी आ रहा है। ओके। तो मॉक के लिए तैयार है विवेक जी? यस सर। आपका इंटरव्यू कब है? मैं आरपीएससी के एप्लीकेशन नहीं अच्छा। डाला हूँ, सिर्फ जनरल प्रिपरेशन सर। ओके ओके। तो आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं कर्नाटक से बिलोंग करता हूँ सर। हाँ, लग रहा बीजापुर था साउथ। बीजापुर साउथ कर्नाटका। के। अच्छा अच्छा। ओके, कोई नहीं। सो आर यू रेडी फॉर द मॉक इंटरव्यू? यस सर, श्योर। ओके, सो इन विच लैंग्वेज आर कंफर्टेबल, हिंदी और इंग्लिश और बोथ? इंग्लिश। इंग्लिश। ओके, तो मिस्टर विवेक, लेट्स स्टार्ट द मॉक इंटरव्यू, ओके। थैंक यू। ओके, सो प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Good evening, sir. Thank you for giving opportunity to introduce myself. I am Vivek Kumbar, belongs to Bijapur district of Karnataka. I have completed from my BA and MLAC from Rani Chennamma University. Thereafter, I have worked developmental research Mumbai. There I have learned worked in a Koha and this space. Thereafter, I joined as a librarian in CMR School, University, Bangalore. There I handled the library administration things like procuring of books, uh, subscribing of print journals based on the faculty recommendation or student recommendations. And there presently I am working as a library information assistant.
at ISA Tirupati. My hobbies are reading books, reading motivation books. My strength are working in the team. Hello. Yes. Okay, so Mr. Vivek, is there any famous thing from your city? What is popular in your city? Popular is crop is grapes is there. Grapes and sugar cane is much popular in the city, sir. Okay. So, what are the subjects in your graduation? Graduation, political Yeah. history, Kannada and sociology, sir. Political history. History, Kannada Hmm. and sociology. These subject I study. Sociology. Yes, sir. Okay. So, what is the DDC number of sociology? Sociology is 300, sir. 305. 305? Yes, sir. 305. Are you sure? Um, 310. 310 for social sciences. Okay. So, Mr. Vivek, Yes. as you said, your hobby is reading motivational books. Hmm? Yes. So, could you please tell me any five books on the same field? By Wings of Fire by APJ Abdul Kalam and Napoleon Hill Bonaparte books, Think Rich, Grow Rich, and two books Hmm? only I What? remember Could you two please books. repeat? Not able to recall. Huh? Okay. So, which is the last book you have read? Yes, sir. The last book which you have read. Could you please name the book? Think Rich, Grow Rich by Napoleon Hill. Think Rich, Grow Rich, huh? Okay, give the summary of that Yes, book. sir. Tell me the summary. Think Rich means whatever you have to think, you should implement, you have to work on that way to grow rich. Should implement whatever you should think, you have to implement in the work. You have to put in the action, sir. Okay, so this was the moral of the story. Yes, sir. Okay. So you said you have knowledge of Koha and D space, right? Yes. Okay, so please tell me about D space. DSpace is a digital library software. It uses the PostgreSQL as a relational database management system and uses the uh, using a search engine information in retrieval and indexing search engine to access the uploaded resources from the digital library software. Okay. So what are the three major things in D space in front end? Front end Yes. collection, uh, Hmm. community and items.
Okay, so what is the difference between correction and the community? Community is for particular department. You have to get the particular departments. Under we'll have to add the collection like thesis, uh, journal, thesis, newspaper clippings, newsletters. Under that, we'll have to add the item types, sir. Uh, So suppose you have to deposit the electronic thesis submitted in the university. So how will mhm. you do that? Once the embargo period is over, after that we can deposit into the institutional repository. Until unless we can't deposit, sir. Yes, requested by the pattern or university norms. We can't deposit into the this space, sir. We can't deposit the thesis in the space or institution repository, you're saying. Yes, sir. Only we can deposit the abstract itself, sir. A full thesis we can deposit after embargo period is over. Okay, so what is the embargo period for the PhD thesis? Uh, Sorry, What is the embargo period for PhD thesis? embargo period it will be 2 years, 1 to 2 years, sir. 1 to 2 years. Okay, what is the embargo Yes. period? Could you please explain? Embargo period once the once the article our thesis should not go to the public. Should be no one can access restriction is there. Hello. Yeah, continue. There should be a access restriction is there for Mm. accessing the particular pieces called as symbols. No, what is the purpose of restriction? Why they restrict the content? Why will you restrict the electronic thesis? What is the purpose of the restriction and why embargo period exists? Could you Because please of explain? hmm? Yeah, continue, please. Not able to recall it, sir. Okay, so what are the duties assigned to you as a library assistant? Hi, sir. I'm working at patent creation and circulation transactions returns, managing journal uh, usage statistics and stock inventory taking. Okay, so how do you manage journal usage statistics? We'll have to take the journal usage from counter statistics from all the publisher website, what we have subscribed. We compile it together. We will analyze based on how much reviews user had taken, how much download it's has appended. Based on which we'll take a subscription for next year. If less usage is there for a particular journal, we'll discontinue it, sir. Okay, so are you doing this on a monthly basis or weekly basis or half yearly or what? Yearly basis, we'll do yearly basis, annual. Yeah, yearly basis. Yes. Okay, so what else you are doing there? Arif, On a what else are you doing there on a regular basis? regular basis is circulation returns and procuring of the books based on the faculty may recommendation. We'll check the duplicates
After that, we'll take approval from the library committee. We'll order the books. First we'll get the quotation, then we'll order the books. Once the books will come, we'll check the pages of it. Then we'll enter into the software. What are the bibliographical details of that? We'll enter into the software, sir. Okay, so don't you compare the quotation received by the different vendors? Don't you need to do this? Hmm? Don't you compare the quotation? Okay. Guess how much discount he will quote based on how much discount he'll go. Discount is already fixed. Discount is there. Hmm. Based on that, we'll procure the Okay, resources, so sir. After compiling the quotation from different vendor, hmm. we'll finalize the vendor and give purchase order to him. Okay, so what are the major things we need to point, at the time of comparative, comparative study, or the comparison between the quotation received from the different vendors? So what are the major things we should notice, or please tell me? What are the Can you repeat the question, sir? Sir? What are the major thing we should consider while comparing, while preparing the comparative study? Got it? Comparative study of vendors. Huh? Yes, yes. Comparative study of the quotations received from the vendors. So what are the major thing we should consider while preparing the comparative study? He should have to supply the latest edition of the book and Hmm. it should be not not a Vivek, Indian Vivek ji, edition. you are not audible. Delivery date also. Yes, sir, I am audible. Can you No, no, hear your me voice well? is breaking. Your voice is breaking. Now, I sir? barely hear you. Okay, thank you, Now Vivek can you ji. hear me, Thank you, sir? thank you, Vivek ji. Your mock is Thank you, over. sir. You're welcome. Okay, I really appreciate it that you took the courage to participate in the mock interview. I really appreciate it, and you have done a very good job. Uh, Still you are not audible, Vivek. This time. Vivek, you are not audible. I unmuted, sir. Myself is unmuted only. Not audible. Can you hear me, sir, now? No, no, now you are audible. Okay, so overall, your mock was very good. Yes. There are a few things we need to work on Mm. it. Okay, I hope you can figure out Okay. what are the areas you should work on it. Hmm? So the first thing Okay. you have to improve Please that. tell me which things have worked. Vivek, you are not audible clearly. Hello. Yes, Now, sir, now you are please audible. tell Was me the the things which will I have worked on. Yeah, I'm telling you the same. Okay, so the first thing that your introduction was too Mhm. long. Okay, so brief it and highlight the important points. Okay, so the major part you should cover is your work experience. Okay, so what are the uh, work responsibilities have been assigned to you by your institution? Just describe what's your current role,
and Okay, sir. your skills, and what are the skills you possess. Okay, so Mhm. try to incorporate all these things, Okay, sir. and you can work on your communication, because you were Mhm. speaking very slowly, so just prepare a self introduction. Okay, Okay. and send it to me. I will tell you more how can you improve that. Okay. Okay. Mm. Just write it down, just take a copy and pen, write down your introduction line by line and improve it, and then write it again and again improve it. Okay, and then send it to me. I will also give some suggestions how you can improve it further. Okay. Okay, sir. uh, so okay. Remaining things, any I will have to improve in the section. Yes, yes, there is. So what were the questions I have asked? Tell me any. Embargo questions you asked. Yeah, yeah, Embargo. embargo. Yeah, you should read about it, embargo period. We don't impose embargo period on PhD thesis. Okay. Okay. Basically, embargo period imposed by the publisher. Hmm. Okay. It is imposed by the publisher to Journal articles. uh, on journal articles Yes. uh, to manage the publishing cost, basically. Mhm. Hmm. So that people subscribe that journal so that the publisher can manage the publishing cost. Okay, that's why they impose the embargo period. Yes. So in case of PhD thesis, because the publisher of the PhD thesis is the institution itself, so they Mhm. don't impose any embargo period. Okay. Okay. And there is the national level repository, that is Shodh Ganga. So every institution supposed to upload their PhD thesis on that portal. Okay. If we upload in the public domain, there's no restriction on that. Yes, there is no restrictions. Okay. That's Is why any period is it's there, just sir, for it? For uploading into Shodhana portal, any period is there? no, no, there is no period. After the submission of the PhD thesis, Oh, we can upload it on the Shodhganga portal. Okay, just okay. take the consent from the research scholar. Okay, in written form, and you can upload it on the Shodhganga portal. ठीक? Got it? Yes. Got And it. when you are talking about institutional repository, so what is the meaning of institutional repository when you are not able to upload your own PhD thesis on your repository? You know? So in the institutional repository, all the university is supposed to deposit their intellectual output. Okay. But their publications can Yeah, deposit. yeah, the publication and the thesis, dissertation, previous year question papers, faculty Yes. publications. Okay. So we need to deposit all the institutions' intellectual output. Okay. The all the publication produced by the university or the university staff or the Mhm. student. Okay. Yes. Got it? Got Okay, good. And what are other questions? other questions about what is embargo you have asked. Okay, I didn't ask about embargo, particular question, but you itself, You yeah, you itself, what you is by your own discuss about embargo period, you don't you need have to. asked about Mm, a space, sir. First question. yeah. What? Faisal sir. A D space. D space you have asked question. Yeah, yeah, on day space, yes. Okay, so we should try to avoid the terms, which we have not a clear picture about that particular term. Okay, so we should try to avoid using those Okay. terms in our answer. Okay, so as How per my sir? understanding, How yes, to frame the answer?
how to frame the answers. That I don't know, sir. Now, first try to start with the major points. Okay. Hmm. Basically, just try to answer what it is. Okay. Just try to answer the what. Okay. What? Just explain that only. And then further, if Hmm. you think, or if you can figure out that the interviewer is not satisfied yet with your answer, then you can elaborate it further. Okay. But first, give the major points. Just highlight the major points of the answer. Okay. Okay. Yeah. Hmm. Okay. Just keep Yes, participating sir. in the mock interview, and we सर will have. सर फैजल सर Yes, Devendra ji, please say. सर मैं ये बोला था कि वो सर प्रिसाइज चेन इंडेक्सिंग और पॉप्सी थोड़ा सा एक लाइन में बता देंगे कि क्या होता है। हाँ हाँ, बिल्कुल बता देंगे, है ना। हम्म, बट राइट नाउ वी आर हैविंग द मॉक इंटरव्यू। ओके जी सर, ओके सर, ओके। ठीक है। ओके सो ठीक है विवेक जी, इज इट ओके? Yes, sir. Hello. यस। सो इज देयर एनीथिंग वुड यू लाइक टू आस्क मी? ओके सो हु इज नेक्स्ट who would like to participate in the mock? Miss Pooja, are you there? Meenakshi ji? Can we give it in a brief or 2 to 3 minutes introduction be there? And Hmm? सर अभी तो मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। अभी टाइम है सर इंटरव्यू को, तो उतना मेंटली प्रिपेयर नहीं हो पाई हूँ अभी। Okay, okay, no issue. सर मैं And ready हूँ। okay, जी काव्या। यस वैसे सर। वैसे सर ये इंटरव्यू का लास्ट इंटरव्यू कब है, 2020 वालों का, 22 वालों का? 9th जनवरी को आई थी। अच्छा हम्म। सर sir, सर, whether 11 you, जन अभी सर 11 जनवरी है। अभी तो सर 11 जनवरी है। हाँ सर। किसका है 11 में? सर तो ही है, साथ में है वो, उसका है 11 को बता रहा था। अच्छा, गुड। आपका कब ग्यारह है जनवरी तक देवेंद्र? चलेगा। मेरा जी 6 को है। अच्छा अच्छा, ओके। ठीक है, तो कौन देगा मॉक? और सर मैं। काव्या। ठीक है, काव्या जी है ना। सो अपना परिचय दीजिए। नमस्ते सर, मेरा नाम काव्या साहू है और मैं सागर मध्य प्रदेश की निवासी हूँ तथा सागर से ही मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा को पूर्ण किया है और सागर से मैंने अपनी उच्च शिक्षा को पूर्ण किया है। मैंने ग्रेजुएशन तथा बी लिब एम लिब कन्या शासकीय उत्कृष्ट महाविद्यालय सागर से पूर्ण की है और मैंने 2023 में सेट तथा 2024 में नेट एग्जाम क्वालिफाई किया है। मेरी हॉबी, मुझे कुकिंग करना अच्छा पसंद है तथा मैंने 2021 में कूडो कराटे नेशनल टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया था तथा इसमें मैंने सिल्वर मेडल प्राप्त किया है, जो मेरे अ, जो मेरे सर बस इतना ही। किसमें आपने सिल्वर मेडल प्राप्त किया है काव्या जी? सर कूडो। कूडो। इस गेम के बारे में जरा और बताइए। सर ये मिक्स मार्शल आर्ट गेम होता है सर, इसमें कराटे, ताइक्वांडो, रेसलिंग, जूडो इन सब का मिक्सअप होता है सर। अच्छा, तो ये किसी कंट्री का नेशनल गेम है? नेशनल गेम तो नहीं है सर ये अभी, लेकिन ये जापानीज गेम है सर। जापानीज गेम है, तो आपने इसको कैसे सीखा? सर सागर में इसकी एकेडमी है सर, वहां से मैंने इसको सीखा है सर। नहीं, क्या पर्पस क्या रहा आपको इसको सीखने का?
सर मुझे कॉलेज के द्वारा मोटिवेट किया गया था सर, इसको सीखने के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए सीखा था सर, और फिर नेशनल लेवल तक मैंने इसमें परफॉर्म किया है सर। नेशनल लेवल तक किया आपने? यस सर। अच्छा, तो क्या रहा उसका फिर? सर सिल्वर मेडल है। नेशनल लेवल पर है ये? यस सर। तो फिर आपके पास स्पोर्ट कोटा है? नो सर, स्पोर्ट कोटा सर जब एकलव्य, आपके पास एकलव्य पुरस्कार होता है सर, तब मिलता है। अच्छा, नेशनल लेवल तक खेलने पर नहीं मिलता है खाली? नो सर, मुझे तो नहीं मिला सर। आपने कोशिश की थी, पता किया था इसके बारे में? यस सर, मैंने पता किया था सर। अच्छा, ओके, तो अभी आप इसको कंटिन्यू करा हुआ है आपने? नो सर, अभी मैंने कंटिन्यू नहीं किया है सर इसको। क्या अब इंटरेस्ट नहीं है आपका, क्या है? नहीं सर, इंटरेस्ट तो है सर, लेकिन अभी सर ये थोड़ा सा एमपीपीएससी की प्रिपरेशन में सर थोड़ा टाइम नहीं मिल पाया सर इसके लिए। अच्छा, ठीक है, तो क्या वजह आप लाइब्रेरियन क्यों बनना चाहती हैं? सर मैं सर मैं यूजर्स तक सर लाइब्रेरी सर मैं इसलिए बनना चाहती हूँ क्योंकि जब सर मैं ग्रेजुएशन में थी तो मुझे मेरे कॉलेज की लाइब्रेरी के द्वारा, लाइब्रेरियन के द्वारा सही तरीके से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की गई, जिससे मुझे बहुत बुरा लगा। इसलिए मैंने निर्णय किया कि मैं खुद लाइब्रेरियन बन के सबको सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगी। और सर मैंने जब प्रोजेक्ट वर्क था ग्रेजुएशन में, तो मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ मैंने इंफॉर्मेशन सर्च की और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करी, और वो बहुत खुश हुए। तो मुझे ऐसा लगा कि इंफॉर्मेशन को शेयर करके बहुत खुशी मिलती है, प्रोत्साहित होते हैं। तो मुझे लगा कि मैं लाइब्रेरियन बन के लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचा सकती हूँ। अच्छा, ओके, वेरी गुड। तो आपको क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग का ज्ञान है आपको? हाँ सर। अच्छा, तो ACR2 में कितनी तरह की एंट्रीज हम बनाते हैं? सर ACR2 में हम 3 तरह की एंट्रीज बनाते हैं सर। मेन एंट्री, एडेड एंट्री और रेफरेंस एंट्री। एडेड एंट्री कौन कौन सी बनती है? सर एडेड एंट्रीज बनती हैं सर कोलैबोरेटर, जॉइंट ऑथर, और सर सब्जेक्ट टाइटल सीरीज। अच्छा, तो मैक्सिमम कितने सब्जेक्ट हेडिंग हम बना सकते हैं, सब्जेक्ट एंट्री कितनी बना सकते हैं हम ACR2 में? तो सब्जेक्ट एंट्री सर हाँ, मैक्सिमम सब्जेक्ट कितनी बना एंट्री जा सकती है? सर 3 सर या 2। एक बताइए, 3 या 2, दोनों में से बताइए। सर 3। ओके, तो सब्जेक्ट हेडिंग असाइन करने के लिए हम कैसे असाइन करते हैं? सर शेयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग की हेल्प लेते हैं सर। अच्छा, ओके, ये क्या चीज़ होती है सब्जेक्ट हेडिंग, किसे कहते हैं बेसिकली, जो है आपने सीआर लिस्ट बोला? ये सर जो छोटी लाइब्रेरीज होती हैं सर, उनके लिए सब्जेक्ट हेडिंग के लिए इसका यूज किया जाता है सर, सब्जेक्ट हेडिंग के लिए। हाँ, ठीक है, पर क्यों यूज़ करते हैं? सर सब्जेक्ट के बारे में बताने के लिए सर, सब्जेक्ट हेडिंग का यूज हम सब्जेक्ट, पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं सर, ताकि यूजर आसानी से अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को सर्च कर पाए। अच्छा, और यूनिफॉर्मिटी हो पाए इसके लिए यूज़ नहीं करते हैं? यस सर। यूनिफॉर्मिटी के लिए यूज़ नहीं करते हैं? यस सर, करते हैं सर। हम्म, नहीं तो फिर कोई भी कुछ भी हेडिंग असाइन कर देगा ना फिर तो, यस जिसको सर। जो कैटलॉगर को जो ठीक लगेगा वो असाइन कर देगा। यस सर। ठीक है, तो ये बताइए कि मेजर 3 डिफरेंस आप बता सकती हैं ACR2 में और CCC में? ACR2 में और सर क्या में? CCC में? CCC में? हाँ यस सर। ACR2 बताइए। है सर, उसमें टोटल 8 सेक्शंस होते हैं। CCC में 6 सेक्शंस होते हैं।
सर इसमें जो ACR2 है, इसमें पंक्चुएशंस का यूज किया जाता है और ट्रिपल सी में पंक्चुएशंस का यूज नहीं किया जाता सर। अम, और सर तथा सर CC जो है, ट्रिपल सी है, वो सर भारत में निर्मित है, रंगनाथन जी के द्वारा बनाई गई है, तथा ACR2 को अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा बनाया गया है सर, ALA के द्वारा। एलियन ने बनाया है नहीं एशिया सर, टू? ALA लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस और कैनेडियन लाइब्रेरी मिलके इसको बनाया है सर। अच्छा, यूके नहीं बनाया? लाइब्रेरी एसोसिएशन जो था यूके का, उसने नहीं बनाया इसको? उसका कंट्रीब्यूशन नहीं है? है सर, है। अच्छा, तो अभी ACR2 को किसने रिप्लेस किया है, कौन से स्टैंडर्ड ने? RDA ने सर। ये क्या चीज है RDA? रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एनेक्सेशन सर, इससे सर डिजिटल डिजिटल युग में ये डिजिटल कंटेंट के लिए यूज होता है सर। डिजिटल कंटेंट के लिए यूज होता है? यस सर। अच्छा, और ये बताइए क्लासिफिकेशन जो है DDC और CC में क्या फर्क है? सर DDC सर डिवी डेसिमल क्लासिफिकेशन मेलवी डिवी के द्वारा बनाई गई थी, और सर जो कोलन क्लासिफिकेशन है वो श्री रंगनाथन जी के द्वारा इसका डेवलपमेंट किया गया था सर। और DDC है, इसमें मेन सब्जेक्ट को 10 भागों में बांटा गया है, डेकाटोमी। और जब CC है सर, इसको पॉलिकाटोमी यानी पॉलिकाटोमी में सब्जेक्ट का विभाजन किया गया है। DDC में दशमलव अंकन पर आधारित है, और सर कोलन क्लासिफिकेशन है सर, ये कोलन पर आधारित है सर, कोलन कोलन और फेसेटेड पर आधारित है सर। अच्छा, फैसिटेड से क्या मतलब है? यस सर। फैसिटेड पर आधारित, इसका क्या मतलब है? फैसिटेड से क्या फेसेटेड मतलब है? फेसेट पर आधारित है सर, फेसेट PMEST। अच्छा, ये क्या चीज़ है ये? सर PMEST सर पर्सनालिटी, मैटर, एनर्जी, टाइम और स्पेस सर, इसमें सब्जेक्ट सर, इसमें इसके आधार पर सर सब्जेक्ट क्या नंबर चीज़ है बने। ये क्या चीज़ कहलाती है, क्या है ये? सर सर मैं समझ नहीं पा रही सर। तो क्या कहते हैं इनको? फेसेटेड सर। अच्छा, फैसिट फैसिटिस कहते हैं इसे? सर मैं याद नहीं कर पा रही सर, सॉरी सर। अच्छा, ठीक है। फंडामेंटल कैटेगरी सुना है आपने? यस सर। वो क्या है? फंडामेंटल कैटेगरीज। अच्छा, सॉरी सर। ठीक है। तो और ई ग्रंथालय के बारे में जानकारी है आपको? यस सर। सर ई ग्रंथालय को NIC के द्वारा डेवलप किया गया है, और ये क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है, तथा गवर्नमेंट भारत सरकार के द्वारा और MP गवर्नमेंट के द्वारा अभी वर्तमान में इस सॉफ्टवेयर का ऑटोमेशन के लिए यूज किया जा रहा है सर। ओके, थैंक यू काव्या जी, बहुत अच्छा, वेरी गुड, आई रियली अप्रिशिएट इट। तो बहुत अच्छा मॉक इंटरव्यू रहा आपका, काफ़ी चीज़ें आपने जो है इम्प्रूव करी हैं, है ना? और वो कॉन्फिडेंस भी नज़र आ रहा है आपके अंदर, और आंसर भी आपको काफ़ी अच्छे हो गए, वेरी गुड। थैंक यू सर। सर आपने जो PDF दी थी, और सर जो आपकी पुरानी क्लासेस है सर, उनको देख के इतना इम्प्रूवमेंट आया है सर। ओके, वेरी गुड, है ना? काफ़ी अच्छे से आपने समझा और क्लासेस भी अच्छे से आपने देखी है लग रहा है। हाँ, तो जो भी देखिए हमारी क्लासेस होंगी ना प्रीवियस जो आपने अटेंड करी हैं, उनको आप ऐसे ही देखिए, और है ना, और उसको ध्यान से देखिए और खुद से क्वेश्चंस फ्रेम करिए, है ना? यस तो सर। बेसिक जो डिफरेंस है, अंडरस्टैंडिंग है, वो आपकी डेवलप हो गई है वैसे। बहुत अच्छी बात है जो कि, है ना? और
ओवरऑल आपका बहुत अच्छा था, वेरी गुड। तो सर हाँ, पूछिए। सर ये क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी सर, ये न्यू बैच के लिए? अभी तो जैसे मॉक चल रहे हैं और 11 जनवरी तक ये क्लोज हो जाएंगे सर। फिर जी नई जी। बैच के लिए क्लासेस कब से शुरू होंगी सर, जो 15 दिन की थी ना वो वाली? नहीं नहीं, ये उसी का पार्ट है ये, जो क्लासेस है ना, हाँ ये तो उसी का सर ये पार्ट तो है। रिमूव इंटरव्यू चल रहे हैं। जी जी। मतलब 15 दिन की क्लासेस थी और उसका वीडियो और नोट्स वगैरह का पीडीएफ था। तो हाँ उसके बारे में बात कर रही हूँ सर मैं, वो कब तक होगा? हाँ, तो जो नोट्स आपको दिए गए हैं मीनाक्षी जी, है ना, उनको आप सर ने दिए होंगे आपको, उसको पढ़िए आप, है ना, अच्छे से। और उन्हीं से ये क्वेश्चंस हम पूछते हैं, और उनको आपने इसमें पार्टिसिपेट करना है आपको भी, ठीक है। ये जो सेशंस है हमारा ना 15, ये उसी का पार्ट है ये। तो इसके अंदर नहीं आपने सर, जो है, वीडियो क्लासेस वगैरह हाँ का पूछ रहे थे ना, वीडियो क्लासेस क्लासेस का। हाँ, मतलब कल अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो ग्रंथालय क्लास। की जो है क्लास होगी, वो आपको मिलेगी, ठीक है। और हाँ सर वैसे 15 दिन की क्लासेस नहीं होंगी जैसा कि लिखा था उसमें, जो मैंने कोर्स परचेज किया था ना उसमें लिखा था सर। हाँ हाँ, वो उस तरह से होंगी, बाकी है ना, आप एक बार और सर से बात करिएगा, ठीक है। इसके सर अंदर मैंने कहा हाँ कि क्या 15 दिन, 1 जनवरी से 15 जनवरी तक की क्लासेस थी ना, वीडियो क्लासेस क्लासेस थी जूम पर, तो हाँ हाँ, उस ये क्लास से क्लासेस, संबंधित बात। ये जी जी, मैं समझ नहीं, वही क्लासेस हैं ये मीनाक्षी जी, है ना। बाकी एक बार आप और सर से पूछ लीजिए, मैं पूछ लूंगा कि कौन सा प्रोग्राम है आपका, ठीक है। वैसे क्लासेस ये उसी का पार्ट है। हाँ सर, ये तो क्योंकि मॉक चल रहा है तो मैंने कहा कि क्योंकि ये तो पुराना मतलब बैच हो गया 2022 वाला, जो मैंने अभी सब्सक्राइब किया था ना, तो उसमें था पंद्रह नहीं दिन नहीं, की ये वीडियो अभी क्लास। का 1 तारीख से स्टार्ट हुआ ये, ठीक है सर, कल मैं से कल स्टार्ट कॉल होगा। कर लूंगी। जी जी यस सर। ठीक। ओके। जी हाँ। जी काव्या जी, कोई क्वेश्चन था जो उसका आप, हाँ सर, वो सर सब्जेक्ट एंट्री वाला सर, कितनी एंट्रीज बनती है सर, 3 बनती है या 2 सर? हाँ हाँ, 3 एंट्री बनती है, सही बताया आपने। यस सर। और वेरी गुड। सर जस्ट लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग सर, वो? हाँ, वो आपने बता दिया था, बाकी मैंने उसको यूनिफॉर्मिटी के लिए हम रखते हैं ना, सब्जेक्ट हेडिंग असाइन करने के लिए, ताकि स्टैंडर्डाइज करने के लिए हम सब्जेक्ट हेडिंग्स का यूज करते हैं, ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन के लिए, ठीक है, टू ओके सर। मेंटेन द यूनिफॉर्मिटी, है ना, वी यूज सब्जेक्ट हेडिंग्स, ठीक है। लाइक स्टैंडर्ड बना दिया हमने, और ताकि लोग उसी से निकाल करके ड्राइव करें और वो सब्जेक्ट हेडिंग लिखें, ठीक है। ओके सर। तो फंडामेंटल कैटेगरी सर, ये 5 फंडामेंटल कैटेगरी, PMEST। हाँ इसी, हाँ इसी को हम कहेंगे फंडामेंटल कैटेगरीज, ठीक है। ओके सर। हाँ, PMST आपकी फंडामेंटल कैटेगरीज कहलाती हैं। हाँ, और कोई था क्वेश्चन? हम्म। नो सर। ठीक है, ओके, वेरी गुड। ओके, सो हु इज नेक्स्ट? सर मैं देना चाहूंगा। सत्येंद्र जी, हाँ, ठीक है सत्येंद्र जी। तो सत्येंद्र जी, आप ये बताइए, लाइब्रेरियन क्यों बनना चाहते हैं? और सर लाइब्रेरियन बनने के पीछे रीजन ये है कि मेरे को यूजर्स को सपोर्ट करने में, और टीचर्स स्टूडेंट्स रिसर्चर, इनको हेल्प करने में मेरे पास एक्सपीरियंस है सर, एडमिनिस्ट्रेशन का, तो उसको यहाँ अप्लाई कर सकता हूँ सर। नहीं, तो आपके पास एक्सपीरियंस तो बस इस वजह से आप बनना चाहते हैं? नहीं सर, मैं मेरे को खुशी मिलती है यूजर्स को सर्विस देने में, अभी भी वर्किंग हूँ तो मेरा काम भी थोड़ा सा मिलता जुलता है सर। अच्छा, हाँ सर। कैसा मिलता जुलता काम है आपका? सर अभी भी जैसे कोई फैकल्टी हुआ तो उसका कोई कंप्लेंट डालता है कि ये कमी है, तो उसको सही करने में पीछे रीजन हमारा ही होता है सर, हम उसको पुटअप करते हैं सारी उसकी जो दिक्कतें होती हैं उसको, और ऐसे यूजर्स की वहाँ हेल्प करनी है सर लाइब्रेरियन में। अच्छा। हाँ सर। जैसे सर मैं अभी वर्किंग हूँ, आ, मतलब और क्या बोलते हैं, जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के पद पर सर। तो यहाँ पर क्या होता है, फैकल्टी के जो फॉर्म भरे जाते हैं ना, तो उसकी स्क्रूटिनी की जाती है, और उनको हेल्प भी की जाती है सर। अच्छा। जी सर।
चलिए तो आपको क्यों चुना जाना चाहिए, क्या लगता है आपको करिए? सर इसके पीछे तो रीजन एक आप ही है सर कि मेरे को 5 साल का एक्सपीरियंस है। तो मैं टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हूँ सर। मैं आसानी से स्टूडेंट की हेल्प कर सकता हूँ, रिसर्चर की और फैकल्टी की सर। अच्छा, हाँ सर। तो RFID के बारे में क्या जानकारी है आपको? सर RFID होता है जिससे बुक इशू रिटर्न ऑटोमेटिक होता है। ऑटोमेशन का ही पार्ट है सर एक। बुक इंश्योरेंस ऑटोमेटिक होती है उससे? यस सर। अच्छा, तो उसमें लाइब्रेरियन का कोई काम नहीं है उसमें फिर? लाइब्रेरियन का काम है सर, जैसे सॉफ्टवेयर में इंटीग्रेट करना उसको। टैग होता है कि टैग को बुक्स के अंतर्गत या मटेरियल के अंतर्गत लगा दिया जाता है। एक हम्म। एंटीना होता है सर जो सर्वर भेजता है सॉफ्टवेयर को। तो उसमें पढ़ा जाता है सारा, जैसे बार कोड हुआ, जो भी डिटेल्स भरी जाती है उसके अंतर्गत वो सर। डिटेल्स भरी जाती है RFID टैग में? सर ऑटोमेटिकली कनेक्टेड रहता है सर वो, सॉफ्टवेयर के इंटीग्रेटेड रहता है। अच्छा, तो वो तो वन टाइम टास्क है ना वो तो? सर वन टाइम टास्क के अलावा लाइब्रेरी का काम ये होता है कि थेफ्ट कंट्रोल में भी काम आता है सर वो। किस में काम आता है? थेफ्ट कंट्रोल, हाँ, नहीं पुस्तकों तो की उसमें चोरी फिर के लिए। ऑटोमेटिक किताब इशू रिटर्न हो जाती है, तो मैं पूछना चाह रहा हूँ लाइब्रेरी का फिर क्या रोल है? सर लाइब्रेरियन का रोल एक ये भी है कि कहीं दिक्कत आती है जैसे, आ, हम्म, तो उसको लाइब्रेरियन ही कर सकता है सर। सॉफ्टवेयर में तो दिक्कत भी हो सकती है कुछ न कुछ। क्या दिक्कत हो सकती है? सर जैसे, सर अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ मैं इसका। अच्छा, सॉरी। तो यानी कि आपके हिसाब से अगर RFID इम्प्लीमेंट कर दिया गया तो फिर लाइब्रेरियन की फिर ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किताब ऑटोमेटिक इशू रिटर्न हो जाती है उससे, है ना? नहीं नहीं सर, लाइब्रेरियन की तो जरूरत है सर। कि दोनों की किताब किताब की और यूजर्स के बीच में लाइब्रेरियन ही काम करेगा। अब तो वही मैं पूछना चाह रहा हूँ ना आपसे, क्या काम करेगा वो? तो आपने इंटीग्रेट कर दिया, वन टाइम टास्क है वो तो, वो कर दिया, वो तो फिर सर खत्म हो उसके गया वो काम उसके तो। बाद में क्या होता है कि रिकॉर्ड्स को अपडेट करने के लिए भी तो चाहिए होता है सर लाइब्रेरियन। जैसे कोई नया टेक्नोलॉजी आ रही है तो उसके लिए लाइब्रेरियन ही कर सकता है, कंप्यूटर ऑटोमेटिकली तो कर नहीं हाँ, लेगा सर। तो यानी कि सर्कुलेशन सेक्शन में आदमी नहीं चाहिए होगा, फिर टेक्निकल सेक्शन में चाहिए होगा ना? नहीं सर। हम्म। तो RFID टैग में हम क्या जानकारी लिखते हैं? वो डिस्कनेक्ट हो गया शायद। ओके, कोई और है जो मॉक देना चाहेगा? सर एक मेरा ले लीजिए। जी। सर मेरा ले लीजिए। देवेंद्र जी, हाँ। हाँ जी सर। हाँ देवेंद्र, प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। हाँ सर एक मिनट। आ, सर मेरा नाम सर देवेंद्र सिंह कुशवाहा है। मैं जबलपुर मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। और मैंने अपनी क्लास 10 2005 में एंड 2012 में, 2000 क्लास 12 जो है मैंने 2007 में कंप्लीट किया है। फिर मैंने 2010 में अपना बीकॉम ग्रेजुएशन पास किया जीएस कॉलेज जबलपुर से। फिर BLIS एमलाइस मैंने रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के पुस्तकालय सूचना विभाग से 2020 और 21 में कंप्लीट किया है। उसके तत्पश्चात मैंने सर दो दो वर्ष मैंने एक स्कूल लाइब्रेरियन पद पर कार्य किया है। इसके बाद मैंने एक प्राइवेट कॉलेज में भी लाइब्रेरी असिस्टेंट के रूप में नवंबर 2000 नहीं जुलाई 2024 से लेकर नवंबर 2024 तक कार्य किया है। अभी वर्तमान में मैं एक गवर्नमेंट कॉलेज में लाइब्रेरी ट्रेनी के रूप में कार्य कर रहा हूँ डेली बेसिस पे। और मैंने अपना MP सेट 2023 पास किया है। मुझे जॉगिंग का मेरी जो हॉबी है वो जॉगिंग करना है। लाइब्रेरी ट्रेनिंग के पोस्ट पर कार्यरत हैं आप?
हाँ, लाइब्रेरी ट्रेनी के रूप में हूँ सर। लाइब्रेरी ट्रेनिंग, वो भी डेली वेजेस पर? हाँ सर। अच्छा, तो वहाँ पर अभी क्या क्या वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं? सर वहाँ पे अभी मेरे को जो बेसिकली है वो ई ग्रंथालय पे वर्क कराया जा रहा है। और उस पे भी जो मेरे को जो वर्क दिया गया है वो इशू और रिटर्न सर्कुलेशन सेक्शन पे दिया गया है। और अभी रिसेंटली एस एस टी यानी SC ST के लिए शासन के द्वारा कुछ 1500 की बुक्स जो आती हैं, फ्री बुक्स, उस उस योजना के अंतर्गत जो बुक्स हैं वो फ्री डिस्ट्रीब्यूट इशू रिटर्न के द्वारा मेरे से कराया जा रहा है अभी वहाँ पे रिसेंटली। समझे नहीं, क्या 1500 की किताबें क्या? सर 15 जो शासन की तरफ से सर 1500 हम्म। की बुकें मिलती हैं हम्म। SC और ST के स्टूडेंट्स को, और हाँ। 500 की स्टेशनरी मिलती है हम्म। जितने भी शासकीय महाविद्यालय होते हैं उनमें। अभी हम्म। ये 1 या 2 साल से स्टार्ट हुई है ये चीज। तो सर ये जो बुक्स हैं, ये हिंदी ग्रंथ एकेडमी जो मध्य प्रदेश सरकार शासन की जो वो एकेडमी है जहाँ से ये बुक्स पब्लिश होती है, इसमें सर जितनी भी भारतीय ज्ञान परंपरा की जो भी बुक्स हैं वो ये SC और ST के स्टूडेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट की जाती है 1500 तक की। तो टेक्स्ट बुक नहीं की जाती हैं? नहीं, टेक्स्ट बुक्स नहीं सर, ये इसकी इंडियन नॉलेज सिस्टम की जो है भारतीय ज्ञान परंपरा की, उसमें शायद हम्म। कुछ एकेडमी बुक्स भी रहती हैं, अभी मेरे को उतना अच्छे से नहीं मालूम, लेकिन हाँ दोनों मिक्स रहती हैं उसमें, एकेडमिक्स भी रहती है और नॉन भारतीय ज्ञान परंपरा भी रहती है उसमें। क्या है भारतीय ज्ञान परंपरा, क्या है? सर भारतीय ज्ञान परंपरा जो है जिसमें जो भी भारत की प्राचीन इतिहास से रिलेटेड जो आर्यभट्ट हो गए और भास्कर हो गए और जितने भी एशियन लिटरेचर से रिलेटेड, जो संस्कृत से रिलेटेड वैदिक जो हमारा जो लिटरेचर था उससे रिलेटेड जो भी जो पुस्तकें हैं वो सर भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत आती हैं। तो वो अ, मैंने बच्चों को अभी डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है कि हमारी जो पुरानी जो भारतीय ज्ञान परंपरा की जो शिक्षा है वो बच्चों तक पहुंचे। और ये सर NEP 2020 जो आया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसमें भी ये चीज़ हम्म। बताई गई है। तो इसके द्वारा अभी राज्य सरकार के द्वारा इस पे काफी जोर दिया जा रहा है शासकीय महाविद्यालयों में। ठीक, तो इससे क्या फायदा होगा? सर इससे बेसिकली जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में समझ पाएंगे और भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में समझ पाएंगे। हम्म। हाँ, तो उससे फायदा क्या है ओवरऑल? सर उससे ओवरऑल उनका एक भारत की जो सभ्यता है और जो भारत की विरासत है, जो उससे वो जुड़ पाएंगे और भारत की संस्कृति से जुड़ सकते हैं, जुड़ेंगे। और ओवरऑल उनका जो होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा, माने वो वेस्टर्न एजुकेशन के साथ साथ प्राचीन जो इतिहास है हमारा, जो विरासत है हमारी भारत की, जो पुरानी जो शिक्षा नीति है, उस मैंने पुरानी शिक्षा जो है उसके बारे में भी जान पाएंगे। ओके। तो ये बताइए, जी सर। अगर कोई स्टूडेंट है ना और उसके ऊपर फाइन लग गया, जी ठीक है, सर। और वो आया और गुस्सा कर रहा है कि ये फाइन लग गया मेरे ऊपर, और हम्म। मैंने कोई किताब नहीं ली और फिर भी मेरे फाइन लगाया, तो आप इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे? सर सबसे पहले तो मैं उसको पूरी जो लाइब्रेरी की गाइडलाइंस है वो बताऊंगा। और उसको बहुत मैंने प्यार से उसको बुलाऊंगा और अपने कैबिन में, और उसको जो भी जो गाइडलाइंस होती हैं, जो लाइब्रेरी की पॉलिसीज होती हैं और जो भी फाइन की जो पॉलिसी होती है वो उसको मैं बताऊंगा। और बहुत हम्बल तरीके से मैं उससे ये बोलूंगा, बेटा कि ये जो आपका जो फाइन है, ये आपका ड्यू डेट क्रॉस कर गया है, आपको इतना फाइन हो रहा है। आप इसको आप अपने हिसाब से जो भी है आप उसको कर दीजिए। मैंने जितना भी आपका हो रहा है वो कर दीजिए। वो तो कह रहा है ना कि मैंने किताब इशू नहीं कराई फिर भी फाइन लगा हुआ है मेरे, तो फिर? सर तो मैं एक एक लेटर प्रिंसिपल को लिखूंगा और उस स्टूडेंट के बारे में बताऊंगा कि मैम इस बच्चे ने इस वक्त ये बुक लिया है, और ये हमारे सॉफ्टवेयर पे भी ट्रांजैक्शन पे भी ये शो हो रहा है।
और ये आप उस बच्चा। बच्चे को कैसे सेटिस्फाई करेंगे? आप तो सर कंप्लेन मैं कर रहे हैं उस बच्चे की, तो उससे तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा लाइब्रेरी को लेकर के। नहीं सर, मैं कंप्लेन नहीं करूंगा। मैं ये बोलूंगा कि मैम, ये बच्चे ने ये लिया था ये बुक। बच्चा सेटिस्फाई नहीं हुआ ना, बच्चे के लिए क्या करेंगे आप? बच्चे को सर सेटिस्फाई मैं करना है ना। सर बच्चे को तो सर मैं बच्चे को बुला के ये चीज मैं समझाऊंगा, उसको चीजें प्रॉपर तरीके से ये चीज बताऊंगा कि बेटा आपने ये चीज लिया था और इस पीरियड के ड्यूरेशन पे लिया था, तो ये आपकी ये पॉलिसी, ये आपने लिया था और ये आपकी नहीं इसमें वो फिर भी मान मैनुअली। नहीं रहा है, फिर क्या करेंगे आप? वो बदतमीजी कर रहा है, मिसबिहेव कर रहा है। तो सर मैं अ, अ, कोशिश करूंगा कि मैं समझाऊं, और नहीं होगा तो फिर मैं अपनी हायर अथॉरिटी को उसके बारे में सूचित करूंगा। अच्छा, हाँ। तो जैसे कि आपने बताया कि किताबें फ्री में आप SC ST को दे रहे हैं, तो अगर कोई बच्चा 2 बार आ जाए तो उसको कैसे डील नहीं करेंगे? सर, सर अभी अभी रिसेंटली पिछले साल जो हमारे यहाँ जो बुक्स का हुआ था उसमें कुछ बच्चे थे जो एडमिशन के वक्त जो थे वो माने जनरल माने एस सी, कुछ एसटी के थे जो कि एससी कोटे में आ गए थे। इस प्रकार की कुछ कंडीशन जो थी, तो अब जो है अब ऐसा हो रहा है कि सर कि जो एडमिशन एडमिशन के वक्त जो हमारे को जो डेटा मिलता है लाइब्रेरी के मेंबरशिप कार्ड बनाने का, वो डेटा प्लस जो जो बच्चा जब हमारे पास जो डेटा लेके आता है, जो उसको फॉर्म मिलता है फाइनल, जब हायर एजुकेशन से उसकी रिसिप्ट आती है, वो दोनों क्रॉस चेक होता है, उसके बाद ही और उसका सर्टिफिकेट देखा जाता है कि उसके पास उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट है कि नहीं है, तभी वो बुक इशू होती है उसको उसके कैटेगरी में। तो ये सारी चीजें आप करते हैं फिर देते हैं? हाँ सर, जी सर, ये सब चीजें होती हैं, उसके बाद दिया जाता है उनको बुक्स। तो और वो इससे बुक्स सर पूरी बंडल की बंडल रहती हैं। पूरी मैंने एक पूरा मैंने एक बंच रहता है पूरी बुक्स का, मैंने एक एक बुक नहीं दी जाती, एक एक पूरा सेट दिया जाता है बच्चों को उनका। अच्छा, हाँ। तो उसमें सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं है बच्चों का? नहीं सर, सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं है, वो भी अभी इस समय सर वो सॉफ्टवेयर पे नहीं हो रहा है, ई ग्रंथालय पे नहीं हो रहा, वो हम लोग मैनुअली उस चीज को करा जा रहा है अभी, क्योंकि सॉफ्टवेयर पे वो बुक्स ही नहीं चढ़ी गई, कैटलॉगिंग ही नहीं हुई है उसकी, अभी वहाँ पे एंट्री नहीं हुई है उसकी। कहा कि 1500 रुपए तक की किताबें वो ले सकते हैं। हाँ सर, अभी तो पंद्रह ये सौ बात पता लगी कि उनको फिर सेलेक्ट करने का ऑप्शन होगा। समझा नहीं सर मैंने, कैसा? 1500 तक की किताबें वो ले सकते हैं बच्चे, इस बात से ही हाँ। पता लग रहा था, जैसे कि वो उनको अब पास में ऑप्शन है, वो चूज कर सकते हैं कौन कौन सी किताबें उनको लेनी है। नहीं नहीं सर, उसमें जो मैंने उच्च शिक्षा विभाग से हमको लिस्ट आती है कि यूजी के बच्चों को कौन कौन सी बुक्स देनी है, पीजी के बच्चों को कौन कौन सी बुक देनी है, तो वो वहीं से सिलेबस के अकॉर्डिंग करिकुलम आता है और बुक्स आती हैं, और जितनी हम यहाँ से लिस्ट देते हैं, सूची हाँ, फिर देते तो हैं। 1500 रुपए तक की किताबें ले सकते हैं, फिर इस ये बोलने का फिर तो पॉइंट नहीं बनता है ना। नहीं नहीं, 1500 तक की एक बच्चे को बुक्स जो है, जो मैंने शासन ने दी है, मैंने इस नीति जो पॉलिसी में है ये, मैंने उनको एक जो बुक्स की जो पूरी नहीं, कॉस्टिंग है आपने बोला उनकी। कि एक बच्चा 1500 रुपए की किताबें ले सकता है, फिर बच्चे हाँ। ये बोलने का फिर पॉइंट नहीं बनता है ना, वो तो अलग है। नहीं सर, वो 1500 ही की मैंने जो बुक्स का एक बच्चे का जो कॉस्ट आता है, 1500 ही तक का बुक का कॉस्ट आता है उस बच्चे को। चलिए ठीक है। हम्म, तो ये बताइए, हम्म, अगर आपका चयन हो जाता है लाइब्रेरी के पद पर, है ना, जी सर। तो आप लाइब्रेरी के कलेक्शन को कैसे डेवलप करेंगे? सर सबसे पहले तो मैं पब्लिशर कैटलॉग मंगवाऊंगा, और उसके बाद बुक सेलर कैटलॉग मंगवाऊंगा, और उसके बाद मैं रिकमेंडेशंस लूंगा फैकल्टी से, स्टूडेंट्स की फीडबैक लूंगा, जनरल फीडबैक लूंगा, और उसके बाद जो हमारे जो रेगुलर यूजर्स हैं उनका एक मैं गूगल फॉर्म से उनका एक डाटा कलेक्ट करूंगा कि उनको उनके पसंद की कौन सी बुक्स हैं। तो फिर मैं सर उसके बाद सर मैं फंड देखूंगा कि मेरी लाइब्रेरी में कितना फंड मुझे एलोकेट किया गया है। हाँ। और उसमें सर मैनुअली बुक्स मेरे को जो मुझे प्रिंट फॉर्म में बुक्स है मुझे कितनी मंगवानी है, उसके लिए मेरे को लिए कितना फंड दिया गया, और ई रिसोर्सेस ठीक है, मुझे मुझे पब्लिशर और का कैटलॉग जो मंगवाया उसका कहाँ पे यूज हुआ?
सर पब्लिशर का कैटलॉग सर, जैसे उसमें भी मैं रिकमेंडेशन, जो जो मेरी फैकल्टी है, जो हम्म। मेरी फैकल्टी आएगी, जो जो मेरे कॉलेज में जो फैकल्टी रहेगी, उनसे मैं पूछूंगा कि आपको ये पब्लिशर का कैटलॉग आया है, आप लाइब्रेरी में आके विजिट करिए। और आपको जो नए सिलेबस है, जो नया करिकुलम आया है सब्जेक्ट्स के, क्योंकि सर हर साल उच्च शिक्षा विभाग में कुछ ना कुछ बुक्स यूजी और पीजी लेवल पे चेंजेस आते हैं हिंदी करंट अकेडमी से। तो सर मैं उनको बुलाऊंगा और उनसे पूछूंगा कि कुछ जो नई बुक्स आई हैं क्योंकि सर पब्लिशर कैटलॉग तो आते ही हैं लाइब्रेरीज में। तो हर माने जब सेशन स्टार्ट होता है तो मैं फैकल्टी को बुला के जो बुक्स वो रिकमेंड करेंगे, तो मैं वो उन बुक्स को फिर मैं सूची में अपनी रखूंगा, और फिर उनको मैं कलेक्शन में बुलवाऊंगा उससे। अच्छा। हम्म, ठीक है, धन्यवाद, है ना। जी सर, जी सर। दिवेंद्र जी, बहुत अच्छा, काफी अच्छा मॉक इंटरव्यू रहा आपका। अच्छा सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। और काफी मेच्योरिटी के साथ में आपने जो है वो आंसर किया अच्छा सर। चीजों को। अच्छा सर। वेरी गुड। हम्म, अच्छा सर। और हम्म, आपका टोन जो है और जो जो वे ऑफ कम्युनिकेशन है वो काफी अच्छा है, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा। अच्छा सर। उसके अंदर एक मेच्योरिटी दिख रही है। अच्छा सर। हाँ, और ओवरऑल आपका बहुत अच्छा था। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है, तो ओके सर। कुछ चीजें हैं, अभी भी है ना, देख लीजिएगा आप। हाँ सर। जहाँ पर हम वो वर्ड या वो चीजें जहाँ पर उसकी जरूरत नहीं बोलने की, तो हम उसको अवॉइड कर सकते हैं, है ना। तो आप जैसे नहीं हमने सर, बोला ना, जैसे वो मुझे, जैसे सर जैसे कि जैसे आपने सर वो मैं एक बोलना चीज। था कि सर इस स्कीम के अंतर्गत हाँ। सरकार जो है 1500 तक की किताबें जो है एक स्टूडेंट को देती है जो एससी और नहीं सर, एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते मैं हैं। आपसे एक बात करना चाहता हूँ था कि मैंने अपने जो हमारे यहाँ जो मेन लाइब्रेरियन है मैडम है, मैंने हम्म। इस बारे पे विषय पे बात किया था। तो उनने मेरे को ये बोला था कि पहले ये ग्लोबल इन्फोटेक के नाम से आती थी। हम्म। ग्लोबल जो बिलिंग जो हुई थी, पहले की जो बिलिंग मैंने देखी थी वहां पे, वो ग्लोबल इन्फोटेक के नाम से आती थी। हम्म। लेकिन सर अभी अभी की जो बिलिंग आई थी, अभी जो नवंबर में दिसंबर में जो बिलिंग आई है, उसमें हिंदी ग्रंथ एकेडमी और स्कीम में लिखा था 1500 तक की शासन के द्वारा दी गई ये बुक्स हैं, ऐसा हाँ, दिया गया मैंने था क्या तो। कहा हाँ। आपको ये बताना था कि हाँ। सर इस स्कीम के अंतर्गत एक स्टूडेंट को, एक विद्यार्थी को 1500 तक की किताबें हम्म, उपलब्ध कराई जाती हैं जो एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अच्छा अच्छा, ये लाइन मेरे को इस तरीके से बोलनी थी। हाँ, और ये बात अलग हो गई, यानी कि एक गवर्नमेंट की स्कीम है, इससे ही पता लगा। और अच्छा कैसे अगर हम बोलेंगे कि सर इसमें बच्चे 1500 तक की किताबें ले सकते हैं, ठीक है, ये अच्छा। लाइन बोलने से ये पता लग रहा है कि इसका मतलब बहुत सारी हम्म, किताबें हैं, उनमें से बच्चा जो 1500 तक की किताबें नहीं सिलेक्ट नहीं नहीं करके ले सर, सकता है। ये सर ये एकेडमिक बुक्स नहीं है, ये मैं क्या कह शासन रहा के हूँ द्वारा। मैं समझ हाँ गया आपकी हाँ बात, लेकिन अगर हाँ आप हाँ। ऐसे बोलेंगे ना तो इसका ये अच्छा मतलब अच्छा। जाता है, ठीक जी। है। अच्छा 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 हाँ, अच्छा अच्छा। ये वर्ड बोलने से इसका ये सेंस अच्छा, जो निकलता है, आपने और ये ये वर्ड वाली बोलने लाइन से जो इसका ये सेंस। हाँ। ये वाली लाइन जो आपने बोला कि 1500 की उपलब्ध कराई जाती शासन के द्वारा SC हाँ, ST के छात्रों को। इस स्कीम के अंतर्गत, इस स्कीम के तहत, ठीक है, ठीक। ऐसे आप ठीक बोलेंगे तो वो जी। अलग, फिर हमें वर्ड समझ में आएगा, ठीक है। जी सर, जी सर, जी सर, हाँ, जी अगर सर। हम ये ऐसे बोलेंगे कि हम्म, विद्यार्थी या स्टूडेंट 1500 हम्म, तक की किताबें ले हम्म, सकता है, जी तो सर। अब इससे पता लग रहा है कि यानी कि वो सेलेक्ट करके ले सकता है 1500 तक की जिनके प्राइस है ना, उसके अंडर में जी ले सकता सर, है। हाँ, जी सर, जी सर। तो हाँ, और क्या क्वेश्चन था जो। सर मेरे को वो प्रिसाइज पॉप्सी और चेन इंडेक्सिंग थोड़ा सा पूछना था आपसे। वो सर आप मुझे वॉइस नोट में भेज दीजिएगा तो मैं उसको नोट कर लूंगा, एक अपनी भाषा में लिख लूंगा ठीक उसे। ठीक, ओके। जी सर, जी सर। अभी कोई क्वेश्चन मैंने पूछा आपसे जिसका आपको हाँ। लगा आंसर आप नहीं दे पाए, वो पूछ सकते हैं। हम्म, ऐसा तो मुझे भी सर कलेक्शन डेवलपमेंट एक बार अपने अपने हिसाब से और बता दीजिए मुझे। हाँ, नहीं, वो सही था आपका कलेक्शन डेवलपमेंट, ठीक है। स्टार्टिंग मेन पॉइंट जो होता है वो यही होता है कि हम रिकमेंडेशन लेते हैं, है ना, अच्छा सर। लाइब्रेरी यूजर से, हाँ, टीचर्स और स्टूडेंट्स रिकमेंडेशन लेते हैं। और ठीक रिकमेंडेशन है। लेने के बाद में दूसरा जो मेन पॉइंट है, हम डुप्लीकेट चेक हम्म, करते हैं, ठीक है। अच्छा सर। ये स्किप कर देते हैं लोग बताने में। जी डुप्लीकेट सर। चेक करना बिल्कुल स्किप नहीं करना है।
ठीक है, ठीक है। ये बहुत डुप्लीकेशन, इम्पोर्टेंट। हाँ ये मेरे को बोलना स्टार्टिंग में, मेरे को जो लाइन बोनी अगर कलेक्शन डेवलपमेंट की बात आएगी तो हमको रिकमेंडेशन लेनी है, ये लाइन हमको स्टार्टिंग में बोलना है पॉइंट में। और डुप्लीकेशन चेकिंग जो है वो भी हमको चेक करनी है, ये भी हमको उसमें जोड़ना है, हाँ, उस पॉइंट में दूसरा जोड़ना है। स्टेप हमारा ये रहेगा, रिसीव करने के जी। बाद में, और सर रिकमेंडेशन रिसीव करने के बाद में। यही चीज सर, यही चीज जो हाँ लाइन जो दोनों पॉइंट रहेंगे, जो आपने उस दिन एक्यूशन वाला जो मुझे बताया था ई ग्रंथालय से करने के लिए, जी। अभी एक्यूशन का एक दिन आपने, एक दिन पहले, अभी 2 दिन पहले अभी मेरा एक मॉक लिया था, उसमें एक्यूशन सेक्शन का आपने बताया था मुझे। हाँ मैंने ई ग्रंथालय से एक्यूशन से डायरेक्ट आप बुक कैसे ले सकते हो, तो उसमें भी यही पॉइंट बोलना पड़ेगा कि पहले मेरे को रिकमेंडेशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद डुप्लीकेशन चेक करना पड़ेगा। हाँ, जाहिर है ना, कलेक्शन जी एक्विजिशन सेक्शन का काम ही कलेक्शन डेवलपमेंट है मेनली, है ना। जी जी तो वो जी क्वेश्चन आपसे घुमा के भी पूछा जा सकता है। जी ठीक है। हाँ, ऐसे भी पूछ सकते हैं, और एक्विजिशन सेक्शन का क्या काम है वो पूछ सकते हैं, या कलेक्शन डेवलपमेंट कैसे होगा ये पूछ सकते हैं, है ना। जी जी सर, हाँ। जी सर, जी सर। ठीक है। सर एक क्वेश्चन और था मेरे को हम्म कि जैसे मेरा जो 6 8 साल का गैप आया इसमें मैंने कंप्यूटर ऑपरेटर का काम किया है, तो सर हम्म उससे रिलेटेड मैं क्या क्या चीज अभी 1 या 2 दिन में मेन देख लूँ। जैसे सर मैंने ओएसआई मॉडल देख लिया है, और वेब 1.0 2.0 3.0 हम्म। देख लिया है, और मैं क्या देख सकता हूँ जो मैं टच कर लूँ अभी पढ़ने के लिए उसमें? हाँ, देखिए, गैप्स, कंप्यूटर ऑपरेटर, हम्म, बेसिक चीजें हैं वो आपको पता ही है ना। अच्छा सर, एम हाँ। एस एक्सेल वगैरह का हम्म, ये सब जानकारी तो आपको है। ठीक है, और इससे जी, ज़्यादा इन डेप्थ क्वेश्चन आपको नहीं बनेगा अच्छा कंप्यूटर सर, इसको लेकर के, इस फील्ड को लेकर के, है ना। अच्छा सर, अच्छा सर, हाँ। ठीक है। जी सर, बाकी जी जो सर। आपने आंसर दिया था गैप क्यों है, वो जेन्युइन जो आपने आंसर आपका जो है वो रीज़न वो हम्म, आप दे सकते हैं, ठीक है, वो बिल्कुल जी जस्टिफाई करता है। जी सर, हम्म, जी सर। चलिए, और कोई बात है। नहीं सर, बस इतना ही पूछना था। ठीक है, ओके। ओके सर, ओके। और किसी का कोई क्वेश्चन है, इज देयर एनीवन वुड लाइक टू आस्क क्वेश्चन। सर ओंटोलॉजी और सर सेमेट्रिक वेब, सर एक बार बता दीजिए सर इसके बारे में। ठीक है, मैं इसका ऑडियो भेज दूंगा अभी, है ना। तो आई हैव टू गो समवेयर, आई एम गेटिंग लेट, ओके। So for today, now allow me to wind up the session, and we will see you tomorrow. ओके सर, ओके सर। एक बार आप जो है, जो भी क्वेश्चंस आपके और भी होते हैं वो आप ग्रुप पे डाल दें, ठीक है, मैं जी उसको सर, आंसर कर जी, दिया करूँगा, ठीक है। जी सर, ओके सर, ओके। चलिए, ओके, ओके, ओके सर। गुड नाइट ऑल।